Students, today we will read a story about Rita and her brother Frank picnicking in the woods. Woods means jungle, a small area which is covered by area of trees. So before we start the lesson, let's see the glossary so you can understand the lesson in a better way. आपको अच्छे से समझ आ जाए पूरी तरह. सो लेट्स सी द ग्लॉसरी. सारे मीनिंग्स अच्छे से समझ लीजिए सो डैट द लेसन विल बी ईजी फॉर यू. द स्टोरी इज़ वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वर्ड गैदर्ड. यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड. गैदर्ड का क्या मतलब होता है? कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करना. सेकेंड वर्ड इज वुड्स. Woods means an area of trees smaller than a jungle or forest. जंगल और फॉरेस्ट से जो छोटा एरिया होता है, इट इज़ कवर्ड विद ट्रीज वेयर मोस्टली द वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट लिविंग. ऐसे एरिया को वुड्स कहा जाता है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वुड्स? एन एरिया ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन अ जंगल और फॉरेस्ट. पूरी तरह फॉरेस्ट नहीं होता, उससे स्मॉल एरिया होता है where more trees are there. Then next word is stream. Stream means झरना, जहाँ पहाड़ में से पानी बहते हैं, that is called a stream. Next word leaning against. Standing, taking the support of something. किसी चीज़ का टेका लेके खड़े रहना, that is called leaning. What is the meaning of leaning against? Stand taking the support of something. Clear students? इतना समझ में आ गया? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. Still, without moving, यानी कोई भी मूवमेंट किए बिना बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहना, that is called still. Swiftly means moving very quickly. What is the meaning of swiftly? Moving very quickly. Drowsy means feeling sleepy. नींद में आना, झोले खाना, that we can say, that is called drowsy, feeling sleepy. Next one, bottom means down at the end, पूरा एकदम नीचे तलवे तक, that is called bottom. What is the meaning of bottom? Down at the end. Next word eagerly means with excitement and interest, पूरे उत्साह और जोश के साथ, that is called eagerly. Next bait means food used to trap fish and other animals. मछली को जाल में फंसाने के लिए जो कीड़ा रखते हैं, that is called a bait. So what is a bait? Food used to trap fish and other animals. Now we will continue with the next glossary meanings. Line, the thread of fishing rod. जब मछली पकड़ने के लिए जो रॉड यूज़ की जाती है, उसमें जो डोरा लगा हुआ होता है, that is called a line. So what is a line? The thread of the fishing rod. Next one, trap. Trap means जाल. किसी को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया जाता है, ज़्यादातर शिकारी किसी जानवर को पकड़ने के लिए रखते हैं, तो that is called a trap. Swallow means निगल जाना, उसको चबाना है नहीं, सीधा पूरा एक साथ मुंह के अंदर ले लेना, that is called swallow. स्नेक यूजुअली ऐसा करते हैं, वो कोई भी चीज़ चबाते नहीं, पूरा एक साथ निगल जाते, that is called swallow. Next, to escape means to run away, कहीं से भाग जाना, that is called to escape, run away. Next, silence means शांति, पूरी तरह quietness is there, it is called silence.
इमीडिएटली मीन्स तुरंत, बहुत जल्दी। इमीडिएटली मीन्स उसी समय, तुरंत। वरीड मीन्स चिंतित, किसी के बारे में हम चिंता करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वरीड। बैंक, वो किसी का भी किनारा हो सकता है, नदी, तालाब, झील, किसी के भी किनारे को हम कहते हैं बैंक। नेक्स्ट वन इज देयर स्प्लेंडिड मीन्स वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्प्लेंडिड, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज देयर स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, अजीब प्रकार का, कोई अलग ही चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंज। थंप, what is the meaning of thump? To fall on the ground with a dull sound, जमीन पे ऐसे धड़ाम करके गिरना, उसे कहते हैं, और आवाज़ भी आती है उसमें, it is called thump. So what is thump? To fall on the ground with a dull sound. Next word heartily means joyfully, बहुत उत्साह के था, उसके मन के अंदर ज़्यादा खुशी है, so it is called heartily, दिल से खुश होना means joyfully. So I think all the students have understood the meanings properly, so now we can easily understand the story. So let's start the story. Rita gathered flowers in the woods while her brother Frank sat by the stream with his fishing rod. Holding her bunch of flowers, she walked to the place where Frank was sitting. तो पहले हम इतना देख लेते हैं। तो ये दोनों भाई बहन रीटा एंड फ्रैंक, दे वेंट इनटू द वुड्स। वुड्स का मीनिंग हमने क्या देखा? एन एरिया ऑफ ट्रीज विच इज स्मॉलर देन अ जंगल और फॉरेस्ट। तो वो वहाँ पे दोनों गए थे। तो रीटा क्या करी है वहाँ पे? वो जंगल में इधर उधर घूम रही है और वहाँ पे सारे फ्लावर्स, अच्छे अच्छे कलर के कलरफुल फ्लावर्स, वो सब इकट्ठे कर रही है। वाइल हर ब्रदर फ्रैंक सेंट बाय द स्ट्रीम विथ हिज फिशिंग रॉड, और वहाँ पे फ्रैंक क्या करने आया था? फिशिंग करने के लिए। तो वो आराम से एक जगह बैठ गया और उसे फ़िश पकड़नी थी। तो फ़िश पकड़नी होती है तो क्या करना होता है? किसी तालाब, तो यहाँ पे वो झरने के पास बैठा है अपना फिशिंग रॉड लेके, और वो कोई मूवमेंट नहीं करना, ही इज सिटिंग स्टिल। होल्डिंग हर बंच ऑफ फ्लावर्स सी वॉक टू द प्लेस वेयर फ्रैंक वॉज सिटिंग। तो उसने वुड्स में, रीटा ने बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स बना लिए हैं और उसने पूरा एक बंच, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। हमने लेसन नंबर 3 में देखा ना, कलेक्टिव नाउन्स। तो बंच इज़ कलेक्टिव नाउन। तो उसने पूरा फ्लावर का कलेक्शन कर लिया एंड सीज वहाँ पे चल के आती है अपने भाई के पास और वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है भाई के बाजू में, जहाँ पे उसका भाई बैठा है फिशिंग करने के लिए। डू स्टॉप फिशिंग फॉर अ वाइल एंड प्ले विथ मी फ्रैंक, आरंट यू टायर्ड ऑफ सिटिंग स्टिल? रीटा आस्क्ड, लीनिंग अगेंस्ट द ट्री बिसाइड हिम। तो तभी रीटा वहाँ पे आती है और कहती है, भाई अब तो फिशिंग छोड़ दो और चलो थोड़ी देर मेरे साथ खेलो। क्या आप तब से बैठे बैठे थक नहीं गए हो? मैं कब से पूरे वुड्स में, ये जंगल में पूरे अकेले अकेले घूम के, मैं पूरा घूम के इतने सारे फ्लावर्स कलेक्ट के लिए, आप थके नहीं हो बैठे बैठे? और ये रीटा दीवार, ये झाड़ वहाँ पे है, उसके सामने टीका लेके खड़े होके उसके भाई को कह रही है, चलो मेरे साथ खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू कैच सम फिश, टू डू दैट आई मस्ट सिट स्टिल, आंसर्ड हिज ब्रदर। तो फिर उसका भाई क्या कहता है कि मुझे यहाँ पे फिशिंग करनी है तो मुझे आराम से यहाँ पे बैठना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से हिला डुला, पानी में कोई भी हलचल हुई तो फिश यहाँ से सब भाग जाएगी, एक भी फिश मेरे जाल में नहीं फंसेगी। सो मैं खेलने नहीं आ रहा हूँ। यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू डू फिशिंग, मुझे फिशिंग करनी है तो मुझे आराम से यहाँ पे बैठने दो। रीटा उसे इंसिस्ट करती है
उसने सारे फ्लावर्स कलेक्ट कर लिए है। वो इंसिस्ट करती है फ्रैंक को खेलने के लिए, बट फ्रैंक तो उसको पूरा मन उसका फिशिंग में ही है। सो ही इज़ टेलिंग नो टू हर सिस्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, आया समझ में? ओके, तो चलो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं सो दैट द टॉपिक इज़ मोर क्लियर टू यू। वाई डिड फ्रैंक रिफ्यूज टू प्ले विथ रीटा? कम ऑन स्टूडेंट्स, सोचिए। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। फ्रैंक रिफ्यूज टू प्ले विथ रीटा बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच सम फिश। उसे फिश पकड़नी थी, इसलिए उसने रीटा के साथ खेलने के लिए ना कहा। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक फ्रैंक वॉज रूड टू रिफ्यूज रीटाज रिक्वेस्ट? क्या आपको लगता है वो रूड था अपने बहन को ऐसा आंसर देने के लिए? नो, फ्रैंक वॉज नॉट रूड टू रिफ्यूज रीटाज रिक्वेस्ट बिकॉज कैचिंग द फिश नीड्स दैट ही शुड सिट स्टिल। तो वो रूड तो नहीं था क्योंकि वो अपने काम में बिजी था, उसे फिश पकड़नी थी। अगर वो हिला डुला तो नेचुरली द वाटर विल गेट डिस्टर्ब्स और वो फिश पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो रूड नहीं था, मगर वो उसे फिश पकड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो ही सेड नो टू हिज सिस्टर। चलो, दिस प्लेस इज क्लियर? ओके, नाउ टर्न ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर, which page you have to turn students? Page number 23. Yes, so here it is there. Rita knew she must wait for a long time, so she lay down near the stream and watched swiftly flowing water. After some time she began to feel drowsy. तो जब उसके भाई ने ना बोल दिया कि ही वॉन्ट टू डू फिशिंग, उसे उसके साथ खेलना नहीं है, उसको फ़िश पकड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसे पता था कि अब ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो वो ऐसे खड़े तो नहीं रह सकती, इसलिए वो वहाँ पे नीचे आके, जहाँ पे झरना बह रहा था, एकदम जल्दी जल्दी स्पीड में पानी बह रहा था, वहाँ पे आके वो लेट जाती है और फिर आराम से पानी में अंदर देखने लगती है। और जैसे ही वो वहाँ पे आके लेटती है तो क्या होता है, लेटते लेटते उसे थोड़ी सी ऐसे नींद आने लगती है, नीचे आके वो लंबी हो जाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसे, क्योंकि ज़्यादा टाइम पास हो गया है, बहुत देर हो गई है, तो उसे नींद आने लगती है। आफ्टर अ लिटल वाइल द वाटर बिकेम सो क्लियर दैट शी कुड सी राइट थ्रू इट। और थोड़ी बात उसे दिखा कि जो झरना था उसका पानी एकदम साफ हो गया था और उसे पूरा पानी अच्छे से, उसके नीचे का भी सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। सो इट बिकेम एज क्लियर एज द ग्लास। कैसे हमारा कांच का ग्लास होता है, उसमें आर पार हम देख पाते हैं, एकदम क्लियर होता है, तो वैसे ही जो झरना का पानी एकदम क्लियर हो गया था। रीटा कुड सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम एंड अ स्कूल ऑफ फिश। यहाँ पे वापिस आया कलेक्टिव नाउन, यस, तो स्कूल ऑफ फिश swimming about quickly. Then she heard little voices coming up from the water. तो तब उसने देखा कि पानी एकदम साफ हो गया है और वो झरने के एकदम नीचे तलवे तक वो पूरा देख पा रही है। और उसने तब क्या देखा कि बहुत सारी फिशेस जल्दी जल्दी यहाँ से वहाँ तैर रही है। देन, और फिर बाद में उसे पानी के अंदर से आवाज़ें भी आने लगी। तो अब जब ये ऐसे वो लेटी हुई थी तो उसको पानी के अंदर से आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। तब उसे क्या सुनाई दे रहा था, दैट वी विल सी। रीटा सॉ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फिशेस स्पीकिंग वेरी ईगरली टू वन अनदर। तो उसने जो कान लगा के सुना तो उसे क्या सुनाई दिया कि बहुत सारे फिश इकट्ठा होके कुछ जल्दी जल्दी आपस में बातें कर रहे हैं। सी सॉ दैट दे वेर लुकिंग एट द बेट दैट वॉज हैंगिंग फ्रॉम द फ्रैंक्स लाइन। उसने देखा कि ये जो मछलियाँ हैं वो वहाँ पे जो कीड़ा लगा हुआ है, जो फ्रैंक ने मछली पकड़ने के लिए
फिशिंग रॉड के नीचे लगा के रखा है उसके बारे में वो देख रहे हैं और उसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। अब वो क्या बातें कर रहे हैं, लेट्स सी। माई सन सेट द लार्जेस्ट फिश टू वन ऑफ द स्मॉलर वंस दैट इज़ ए ट्रैप। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी फिश है वो अपने बच्चे को समझा रही है, कह रही है कि बेटा वहाँ पे जो तुम देख रहे हो बैट, वो कोई बैट कीड़ा नहीं है तुम्हारे खाने के लिए, मगर वो तो एक जाल है जिसको पकड़ने के अगर वो खाने जाओगे तो आप उसमें फंस जाओगे। लाइक दिस मदर इज टेलिंग टू हिज सन, आई हैव सीन मैनी पुअर फिश ट्राई टू swallow दैट worm। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे देखे हैं बेचारी मछलियाँ जो जब ये ऐसे बेट को निगलने जाती है तो वो क्या होता है, उसमें फंस जाती है और नेचुरली क्या हो जाता है, वो मर जाती है। बट इनसाइड द worm देयर इज़ अ हुक दैट विल कैच यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू एस्केप। और ये उसमें सिर्फ कीड़ा नहीं है, कीड़ा के अंदर हुक भी लगा हुआ है और जैसे ही तुम वहाँ पे वो कीड़ा वर्म खाने जाओगी तो वो हुक के अंदर फंस जाओगी और फिर वहाँ से निकलना एक बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन द बॉय एट द टॉप विल पुल यू अप एंड टेक यू अवे। और ऊपर जो लड़का बैठा है, अगर उसे पता चला कि वो लाइन में फिश फंस गई है तो वो आपको ऊपर खींच लेगा और वो आपको वहाँ से ले जाएगा एंड यू विल डाई नेचुरली। तो ये मदर फिश अपने बच्चे को समझा रही है और ये ऊपर बैठे बैठे रीटा पूरा ये सुन रही है। तो ये बैठे बैठे रीटा पूरा सुन रही है कि मछली अपने बच्चे को क्या कर रही है। सी, तो उसने पूरा अपने बच्चे को समझाया कि वो जाल है, वहाँ मत जाना। मैंने ऐसे बहुत सारे मछलियाँ देखी है जो इसमें फंस जाती है, सो डोंट गो देयर। और रीटा ये सब सुन के बहुत एक्साइटेड हो रही है कि आगे क्या होने वाला है। शी इज वेरी एक्साइटेड। स्टूडेंट्स, आर यू ऑल्सो एक्साइटेड? आपको ये मज़ा आ रहा है ना कि आगे क्या होने वाला है, जानना चाहते हैं? यस, तो चलिए we'll move on to the next page. तो फिर वो छोटा बच्चा कैसे हमारे घर पे मम्मी हमें कुछ समझाते हैं तो बच्चे ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे वो छोटा बच्चा उसकी मम्मी उसे समझा रहे हैं मगर वो ज़िद पकड़ के बैठा है। क्या ज़िद पकड़ के बैठा है? लेट्स सी। बट मदर, क्राइड द लिटल फिश, आई वॉन्ट टू हैव जस्ट वन बाइट, आई एम श्योर इट विल नॉट हार्म मी। तो उसने छोटे से बच्चे ने फिश ने कहा कि मम्मी मम्मी, मैं तो सिर्फ वो जो कीड़ा है ना वो उसमें थोड़ा सा ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तो वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे मम्मी को पता है बिकॉज उसने पूरी ज़िंदगी देखी है कि हाउ द फिश आर कॉट। वो उसे समझाना चाहती है मगर बच्चे ज़िद पकड़ के बैठते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते। तो उसका क्या सीक्वेंस होता है, दैट विल सी। Rita wanted to call out and tell his mother she was right, but she was not sure if they would be able to hear her. तो रीटा उस मम्मी को बताना चाहती थी कि हाँ वो जो सोच रही है वो बिल्कुल सही है, वो जो बच्चे को समझा रही है दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, वो कोई गलती नहीं है। मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो कुछ बोलेगी तो फिश उसको समझ पाएंगे, उसको सुन पाएंगे या नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाती, वो चुप रह जाती है। वो कहना चाहती है मदर फिश को कि हाँ हाँ आप जो कह रहे हो कि फ्रैंक ने जाल बिछा के रखा है, अगर वो छोटा फिश वहाँ जाएगा तो वो नेचुरली उसमें फंस जाएगा। फॉर अ फ्यू मिनट्स देयर वॉज साइलेंस इन द वाटर। थोड़ी देर मम्मी ने थोड़ी डांट लगाई तो पानी में थोड़ी एकदम साइलेंस था, एकदम शांत था पानी। देन सडनली द लिटल फिश मूव्ड फॉरवर्ड एंड ट्राइड टू swallow द फिश। मना करने के बाद भी बच्चे वही करते, तो वैसा ही इस छोटे फिश ने भी किया। पहले तो शांत रहा और तुरंत जल्दी से जो वहाँ से दौड़ के गया और वो कीड़ा जो फिश फ्रैंक की फिशिंग लाइन में लगी थी उसे उसने निगलने की कोशिश की। द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज कॉट इन द हुक। और तभी क्या हुआ, अचानक जैसे उसने कीड़ा मुंह में
खाने की कोशिश की, वो उसमें फंस गया। हिज मदर स्वैम टूवर्ड्स हिम इमीडिएटली, और उसके मदर ने देखा तो एकदम शी वॉज वरीड, और वो दौड़ के उसके पास उसको बचाने के लिए दौड़ी। कम एंड हेल्प सी क्राउड इन अ वरीड वॉइस, तो मम्मी को कैसे हमारी टेंशन हो जाती है, तो वैसे ही वो मदर फिश को भी उस बच्चे की टेंशन हो गई और उसने जोर से चिल्लाया बाकी सब फिश को, कम एंड हेल्प, आओ आओ, ये अपने फ्रेंड को बचाओ, कम हियर कम हियर, वो जोर से चिल्लाने लगी। ऑल द अदर फिश सराउंडेड द लाइन, तो बाकी जितने भी फिशेस थे वो सारे आजू बाजू में आ गई। एंड सम कॉट होल्ड ऑफ द लिटल फिश टेल एंड हेल्ड ऑन। रीटा गॉट वेरी एक्साइटेड एंड जम्प्ड अप फ्रॉम द बैंक, तो उसने तो क्या हुआ, सारी फिशेस जितनी भी वो पानी में थी, स्कूल ऑफ फिश सारे आगे, और सब ने उस छोटे से फिश को बचाने की कोशिश की, और सब ने उस फिश को पूंछ को पकड़ ली, और ताकि उसको उस हुक से बचा पाए। और ये सब देख के रीटा खूब एक्साइटेड हो गई कि अब आगे क्या होने वाला है। इतने सारे फिश, सारे फिशेस आगे और उसको बचाने की कोशिश करने, तो रीटा ने ये देखा तो बहुत एक्साइटेड हो गई कि अब क्या होने वाला है, वो छोटा सा फिश बचेगा कि नहीं, सारे फिशेस है वो उसे बचा पाएंगे कि नहीं, ऐसा वो सोचने लगी। और ऐसे सोचते सोचते वो लेटी हुई थी वहाँ से जल्दी से खड़ी हो गई। उसे देखना था, उसे जानना था कि आगे क्या होने वाला है। आपको भी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि आगे क्या होगा? यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट, रीटा, I have a splendid catch. The line is so heavy, I can hardly put it, asked Frank. Rita suddenly remembered where she was and she realized that she must have fallen asleep. She walked slowly towards Frank, thinking about her strange dream. तो रीटा, let's see this one more time. Rita, I have caught a splendid fish. The line is so heavy, I can hardly pull it, exclaimed Frank loudly. और तभी क्या हुआ, अचानक फ्रैंक ने जोर से कहा, सी रीटा, मैंने एक बहुत अच्छी फिश पकड़ ली है, ये मेरी जो रॉड के नीचे लाइन है वो बहुत हैवी हो गई है और मैं इसे खींच भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे उसने एक्साइटमेंट में जोर से रीटा से कहा। और वो उसे क्यों खींच नहीं पा रहा था, क्योंकि बाकी जो सारी फिशेस है वो लिटिल फिश को बचाने की कोशिश कर रही थी, सब उसके पूंछ को पकड़ के उसे खींच रहे थे उसको हुक से निकालने के लिए। तो सारी फिशेस की कोशिश की वजह से वो पूरा जो लाइन है फिशिंग रॉड का वो बहुत हैवी हो गया था और फ्रैंक बहुत खुश हो गया था कि उसे इतनी सारी फिशेस एक साथ मिलने वाली है। तभी जो रीटा थी कि अगर मैं कहाँ हूँ, अचानक सी थॉट लाइक दैट। रीटा सडनली रिमेंबर्ड वेयर शी वॉज एंड रियलाइज दैट शी मस्ट हैव फॉलन एस्लीप। सी वॉक्ड स्लोली टूवर्ड्स फ्रैंक थिंकिंग अबाउट हर स्ट्रेंज ड्रीम। तो उतनी देर से उसने जो देखा था कि सारी फिशेस एक साथ आए, वो छोटे फिश ज़िद करता है कि उसे वो बेट को खाना है, उसके मम्मी उसे आके समझाते हैं कि डोंट डू लाइक दिस, तो भी वो मानती नहीं है और वो मानता नहीं है और फिर इट इज़ गोइंग एंड स्वॉलोइंग द बेट। तो ये सब रीटा सोचने लगती है कि क्या मैं नींद में थी, मैंने ये सब क्या सपना देखा कि मैं सच में ये देख रही थी। ऐसे सोचते सोचते वो फ्रैंक के पास धीरे धीरे चल के जाती है। फिर आगे क्या होता है, सी हैड ओनली स्टूड बाय हिम अ मिनट व्हेन स्प्लैश, और वो वैसे ही जाके 1 सेकंड के लिए उसके पास खड़ी रहती है तो ऐसे फश करके पानी में आवाज़ आती है। द फिशिंग रॉड फ्लू ऑफ हिज हैंड, द लिटिल फिश जम्प्ड इनटू द वाटर एंड फ्रैंक फेल ऑन द ग्रास विथ अ बिग थंब। तभी अचानक पूरा दृश्य चेंज हो जाता है। जो फिशिंग रॉड है वो फ्रैंक के हाथ से छूट जाता है और जो भी सारी फिशेस, छोटी वाली फ़िश और दूसरी फिशेस है, सब उसमें जो फंसी हुई थी वो सारे वापस जाके पानी में गिर जाती है और फ्रैंक ऐसे पानी के बाहर किनारे पे जोर से ग्रास के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ता है। फ्रैंक वॉज नॉट हर्ट
and the sight was so funny that Rita started laughing heartily. और ये सब देखने में इतना अजीब था, इतना उसे मज़ा आ रहा था। उसके भाई को चोट तो नहीं लगी थी, मगर वो छोटा फिश बच गया था, तो इसलिए वो देखने में कि पहले तो फ्रैंक इतना एक्साइटेड हो गया कि उसे इतनी सारी फ़िश मिली, बट अचानक सारी फिशेस वहाँ से चली जाती है। You are laughing, Frank said when he got up again. But that was the best fish I have ever caught. The splendid fish must have got off the hook. तो जैसे वो संभला तो उसने रीटा को क्या क्या तुम हंस रही हो हैं? मैंने जो अभी फ़िश पकड़ी थी वो सबसे अच्छी फ़िश थी। ऐसे वो धड़ाम से गिर गया था, तो मैंने जो पकड़ी थी वो इतनी अच्छी फ़िश थी, और तुम्हें मुझे ये सब देख के कि मैं गिरा हूँ तुम्हें हंसी आ रही है। मैंने जो फ़िश पकड़ी थी बहुत अच्छी फ़िश थी। बाय मिस्टेक वो हुक में से छूट गई होगी और वहाँ से निकल के भाग गई होगी। वो रीटा को समझाते हुए ऐसा कहता है कि भूल से वो हुक में से निकल गई होगी। एक्चुअली क्या हुआ था वो रीटा को सब पता है। रीटा began to think quietly. Could her dream have been true? It really did seem strange, and although she felt sorry for Frank, she could not help feeling very pleased that the poor little fish had got away. तो रीटा धीरे सोचने लगी कि क्या उसने जो सारे देखा, कि उसने पूरे पानी को एकदम अच्छी तरह देखा, उसके अंदर छोटी सी फिश कैसे मम्मी से ज़िद करती है उस बेट को खाने के लिए, और उसे मम्मी उसे समझाते हैं, तो ये क्या सब वो सपना देख रही थी या सच में था? वो अपने अंदर ये सोच रही है। और ये क्या सब कुछ अजीब नहीं था? उसे अपने मन में ऐसा फील, ये सब कुछ अजीब उसे लग रहा था। उसे फ्रैंक के लिए तो दुख हुआ क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके इतनी देर से बैठा था। एक फ़िश मुश्किल से उसके जाल में फंसी थी, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाया। मगर वो अंदर अंदर खुश भी थी कि वो जो बेचारी फ़िश वो जाल में फंस गई थी, उसे वहाँ से निकलने का, भागने का मौका मिला। सो शी वॉज एक्चुअली हैप्पी ऑल्सो बिकॉज शी थॉट दैट शी हेल्प द लिटल फिश टू एक्सकेप फ्रॉम दैट हिज ब्रदर। वो दोनों के लिए उसे चिंता हो रही थी, अपने भाई के लिए भी, उसके लिए फीलिंग्स थी, और वो सो फिश जो उसमें फंसी थी उसके लिए भी उसे फीलिंग्स हो रही थी। बट एक्चुअली शी वॉज हैप्पी कि एट लास्ट उसने वो छोटी सी फिश वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, आपने ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ ली, तो आपको क्या लगता है कि जो स्टोरी थी वो अबाउट द फिश, लिटिल फिश के बारे में, वो एक रियलिटी थी कि रीटा सपना देख रही थी? बताइए। Yes, 90% are correct. Very good. तो एक्चुअली इट वॉज ए ड्रीम। वो रीटा एक्चुअली में जब वो तालाब के किनारे लेटी तो उसे लेटते लेटते उसे नींद आ गई, और नींद में उसको पहले से उस फिश के बारे में चिंता थी कि वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि फ्रैंक फिशिंग करके कोई भी फिश को पकड़ के खाए, या इसलिए उसे पहले से उस फिश के बारे में चिंता थी। तो उसका इमेजिनेशन स्टार्ट हो गया था कि पानी में ऐसे फिश होगी, वो उसे पकड़ने आएगी, तो उसका इमेजिनेशन उसके दिमाग में चल रहा था। तो उसी इमेजिनेशन के हिसाब से उसने पूरा वो देखा कि फिश उस बेट को पकड़ने आए, उसके मम्मी उसे कैसे समझा रहे थे, फिर उस बच्चे ने कैसे ज़िद करके वो पानी में गया और वो बाद में उसमें फंस जाता है। तो ये सारा ये रीटा ऐसे सोच रही है कि व्हाट इज द रियलिटी। तो ये रियलिटी नहीं थी, उसने एक्चुअली ये सब सपने में देखा था। कैसे हम ह्यूमन बीइंग बात कर सकते हैं? तो स्टोरी में उसने देखा कि वो फ़िश सब भी बात कर रहे हैं, मगर फ़िश उनकी लैंग्वेज होती है मगर हमसे अलग होती है, मगर वो सब फ़िश की बात समझ रही थी। मीन्स वो रीटा के लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे, तो वो दैट वाज नॉट पॉसिबल, है ना बच्चों? तो ये पॉसिबल नहीं था। तो रीटा क्या कर रही थी, वो ये सब अपने सपने में इमेजिनेशन कर रही थी कि ये सब ऐसा
हुआ होगा। और तो इस स्टोरी से बच्चों आपने क्या सीखा? कम ऑन टेल मी, ये स्टोरी हमें क्या सिखाता है? यस, यू आर करेक्ट। स्टोरी वॉन्ट्स टू टेल अस, ये स्टोरी हमें ये सिखाना चाहता है दैट लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, वी आर हैविंग फीलिंग्स, वी आर हैविंग इमोशंस, तो वैसे ही जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे भी उनके पास भी वैसी ही क्वालिटीज़ होती है। जब वो छोटा सा बच्चा, छोटा सा फिश ज़िद पकड़ के फ़िश पकड़ने जा रहा था, तो कैसे हमारे मम्मी हमारे घर पे हमें समझाते हैं, लाइक दैट वो फ़िश की मम्मी ने भी उसे सारी चीज़ समझाई, उसे रोकने की कोशिश की, मगर जैसे हम बच्चे ज़िद्दी होते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो उसने भी बात नहीं मानी। तो इसलिए हमें जैसे वाइल्ड लाइफ, जैसा हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको वैसे रहने देना चाहिए। ये हंटिंग है, ये फिशिंग है, ये सब से क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ को हम डिस्टर्ब करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो फ्रैंक से ज़्यादा रीटा में ज़्यादा इमोशन से वो फिश के फीलिंग्स के बारे में उसे चिंता हो रही थी। सो शी वॉज मोर सेंसिटिव गर्ल। तो इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ जैसे है उसको हम एंजॉय करना चाहिए, मगर फ़िश पकड़ के कोई भी एनिमल, लायन, टाइगर, एलिफेंट, उसको मार के हम अपने घर में उसकी शोभा बढ़ाते, उसके छाल को, उसके हेड को शोपीस के रूप में रखते, तो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। हम भी खुश रहें और वाइल्ड लाइफ में जितने एनिमल्स हैं उनको भी खुश रहने का उतना ही हक है ना बच्चों? यस, तो वी शुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, बट वी शुड नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब what God has created for us. Thank you everyone.